Assalamu alaikum. Welcome to the lectures of RISC-V single cycle code. In this series, we will be designing a single cycle code based on RISC-V architecture. So definitely this series will consist of many of the other videos. So this is the first video which we are going to discuss about, in which we are going to discuss about the ALU designing. As we all know that in computers, we have already learned from the very basic classes that the main uh, component of the computer is central processing unit, right? It is the main unit which controls the whole computer and everything. But we also have studied that with respect, there is a central processing unit. There is another main unit which is called arithmetic logic unit. Okay, in short form, we call it an ALU, arithmetic logic unit. Basically, this module or this component of the computer is used to perform the arithmetic operations or the logical operations of the computer, right? So if we divide it into two categories, like let's say one is the arithmetic operations and one is the logical operations. So arithmetic operations in which we can say that we are adding two numbers. So addition is one of the arithmetic operation. Then subtraction. Then you can say the multiplication, division, and also the arithmetic operation consists of less the equality checks like equals, both are equals or not equal, and so on and so forth. On the verses of the logical operations means the logical and operation. Definitely we have studied in the basic concept of the digital logic designing when we are designing. So basically logic gates and gates or gates are basically the logical operation we can perform on our in our computers, right? So one of the logical operation is and then there is some or and XOR, not, and so many other operations are also available in logical. So these are the two categories that which we are going to see that how the ALU works on this, how we are going to design the arithmetic ALU unit which can perform both of these operations, right? So let's start with the basic diagram, block diagram of how the ALU looks like and how it, what is our assumption should be. So if I can make a small block diagram of the ALU, so ALU block diagram is something like this, right? So definitely, I'm going to change my language for the better understanding. So let's shift to the Urdu language. तो हमें पता है कि बेसिकली एएलयू हमारा एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, यानी कि ऑपरेशन यूनिट है जिसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे। तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यकीनन मुझे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मुझे कोई नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा या किसी चीज़ के ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, राइट? मैं ये नहीं कह सकता कि भाई अपने आप कोई ऐड का ऑपरेशन हो जाए या अपने आप कोई सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन हो जाए। डेफिनेटली आई हैव टू गिव हिम समथिंग जिसके ऊपर उसको ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। लाइक हम कहते हैं कि भाई मुझे ए प्लस बी करना है, तो वी आई एम सेलिंग टू ऐड ए एंड बी। ओके, ए की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स सपोज कि ए मेरे पास 5 है एंड बी इज 2। सो आई एम बेसिकली मैं इसको कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई मैं कह रहा हूँ कि आप 5 और 2 के दरमियान जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो क्या करेंगे, प्लस का ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। सो वी नो कि जब 5 + 2 होगा तो आंसर विल बी 7। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि भाई 5 - 2 आपको परफॉर्म करना है, सो वी नो कि 5 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो ऑपरेशन आंसर विल बी 3। ठीक है, तो आप यकीनन किसी दो नंबर्स के ऊपर या दो वेरिएबल्स के ऊपर, किसी दो वैल्यूज के ऊपर आप क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो अगर हम एएलयू की बात करें तो यकीनन एएलयू के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे कोई ना कोई दो नंबर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, दो वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो उन दो वैल्यूज को हम किस से डिनोट करते हैं कि लेट्स से दीज आर द इनपुट्स ऑफ द एएलयू। ठीक है, एएलयू के क्या है, इनपुट्स है। तो यकीनन दो एएलयू के इनपुट्स हो गए, तो ए और बी। ठीक है, अब बेसिकली एएलयू जो होता है यानी कि सिंगल बिट ऑपरेशंस नहीं होते हैं कि आप उसमें सिंगल बिट के ऊपर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर जैसे मैं बोलूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम अगर हमने पढ़े ही होंगे, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में देयर आर टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 1 और 0। ठीक है, तो 1 और 0 बेसिकली 1 बिट है कि एक बिट का नंबर है। ठीक है, अगर मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको 1 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे मिनिमम कितने बिट्स चाहिए, 2 बिट्स मुझे रिक्वायरमेंट है। तो बाइनरी में अगर मैं 2 की रिप्रेजेंटेशन करूँ तो वो किस तरह होती है, 1 0, और अगर मैं 0 की रिप्रेजेंटेशन करूँ तो 0 0।
तो दिस शोज द नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो आपका एएलयू जो होता है, लेकिन हम 10 के ऊपर तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं या कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स होते हैं, दे आर नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बिट। ठीक है, या तो वो 32 बिट्स के होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि या तो वो 32 बिट्स के होते हैं, या आपके पास 64 के बिट्स के होते हैं, या अगर अभी हम मजीद एडवांसमेंट की चले जाएं तो दैट कैन बी ऑफ 128 बिट्स। ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपकी डिफरेंट बिट्स के ऊपर हार्डवेयर आपके डिज़ाइन किए जा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जो एलयू डिज़ाइन कर रहे होंगे दैट विल बी ऑफ 32 बिट्स। ठीक है, हम 32 बिट्स के एलयू को डिज़ाइन यहाँ पे कर रहे होंगे। तो अगर एएलयू की में जैसे हमने बात की कि आपके पास दो, यकीनन दो इनपुट्स होंगे, तो अगर दो इनपुट्स है तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा हम इस एग्जांपल की तरफ चलें कि जब हमने 5+2 किया था तो हमने इनपुट्स तो दो दिए थे, लेकिन हमें जो आंसर मिला था वो हमें एक सिंगल आंसर मिला था, दैट इज 7। या अगर हमने 5-2 किया तो उससे हमें एक सिंगल आंसर मिला था, दैट इज 3। तो दिस शोज कि मेरे एएलयू के इनपुट्स तो दो हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट जो होगा या इसका जो आउटपुट होगा या इससे जो मुझे आंसर जो मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा, सिर्फ एक ही आंसर मुझे मिल रहा होगा, जिसको हम फॉर द सेक ऑफ द सिंपलिसिटी हम इसको नाम दे देते हैं कि भाई ये रिजल्ट होगा, कि A+B के ऊपर कोई ना कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और वो मुझे उसका कोई ना कोई एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। नाउ इट इज बेसिक सी बात है कि अगर मेरे इनपुट्स 32 बिट्स के हैं तो यकीन मेरा आउटपुट भी क्या होगा, 32 बिट का ही होना चाहिए। क्योंकि अगर जितने बिट्स के ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ उतने ही बिट्स के ऊपर मैं अपने आंसर को स्टोर करवाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 32 बिट्स के इनपुट लूँ और आउटपुट मेरे 8 बिट का हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इससे फायदा नुकसान क्या होगा कि मैं हार्डवेयर तो चले हो सकता है बना भी रहे, लेकिन इसमें इशू क्या है कि आपके पास जो बाकी की जो 24 बिट्स है वो आपकी क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी, क्योंकि आप 32 बिट के डाटा को 8 बिट के डाटा पे स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके ऊपर उसको मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो बाकी के 24 बिट्स थे वो आपके क्या हो गए, लॉस हो गए। तो इस तरह का हम बेसिकली हम नहीं चाहते कि हमारे पास अगर 5+2 हो रहा हो तो उसका आंसर जो कि 7 आना चाहिए था, और अगर मैं उसको बिट्स उसकी कम कर दूं तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी कम करने की वजह से मेरे पास जो आंसर 7 आना चाहिए था शायद 1 आ रहा हो। रीजन कि मैंने अपनी बिट्स को, आउटपुट बिट्स को मैंने कम कर दिया है। या 5-2 से आंसर मेरा जो 3 आना था शायद वो मुझे 0 शो करो, तो दिस चेंज माई इंटायर रिजल्ट। ठीक है, इससे मेरे प्रोसेसिंग के ऊपर और मेरे अगर बाकी अगर मैं कोई प्रोग्राम चला रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ या कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ, तो उनसे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है कि भाई उसका आंसर जो है वो बहुत डिपेंड वैल्यू करता है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर प्रिसाइज कैलकुलेशन करें कि अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसके अंदर आपके पॉइंट डाटा आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो अगर आप इस तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं कि आपके इनपुट ज़्यादा है लेकिन आउटपुट की जो आपकी बिट्स है वो आपने कम कर दी है, तो उससे आपके पास वहाँ पे क्या होगा, डाटा की इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। और लॉस होने की सूरत में हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन उस तरह बिहेव ना करे जिस तरह के आप चाह रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए हम डाटा लॉस ना हो, इसीलिए हम जितने बिट्स का इनपुट डिफाइन करते हैं उतने ही बिट्स का हम आउटपुट भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ताकि जो जितने बिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो उतने ही बिट्स का रिजल्ट मेरे पास स्टोर हो रहा हो। अच्छा, ये तो सिंपलिसिटी की बात हो गई कि ठीक है दो इनपुट्स हो गए एक आउटपुट्स हो गए। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि मेरे एएलयू को कैसे पता चलेगा कि भाई उसको अभी क्या करना है, कि उसको ऐड परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, या उसको इक्वालिटी का ऑपरेशन चेक करना है, या उसको लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, डेफिनेटली हार्डवेयर के पास अपना तो कोई ब्रेन होता नहीं है, तो यकीन हमें उनको बताना पड़ता है कि भाई आपको अभी इस तरह से बिहेव करना है, क्योंकि हम हार्डवेयर हम खुद डिजाइन कर रहे हैं, तो वी हैव टू टेल देम कि हाउ यू हैव टू बिहेव। तो इसके अंदर फिर हम मजीद क्या चीज़ें ऐड करते हैं, हम इसके अंदर एक चीज़ ऐड करते हैं दैट इज नोन एज द कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, हम इसमें क्या डिज़ाइन करते हैं कि कंट्रोल सिग्नल को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई ये बेसिकली कंट्रोल सिग्नल शो बताएगा मेरे एएलयू को कि मुझे अभी फ़िलहाल क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके लेट्स सपोज कि मेरे पास जो कंट्रोल सिग्नल है आई एम वो मेरे पास कितने बिट्स का है, 3 बिट्स का है। तो अगर 3 बिट्स के मेरे पास कंट्रोल सिग्नल है तो इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, 2 raised to power 3 इज 8। अगर आप 8 कॉम्बिनेशन बनाए तो क्या हो सकता है कि ऑल शुड बी जीरो, एक कॉम्बिनेशन 0 0 1 0 1 0 0 1 1 एंड सो ऑन। ठीक, तो हर एक पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन है या एक पैटर्न के ऊपर मैं कोई ना कोई इसको एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोल दूंगा कि भाई अगर आपके पास 3 0 आते हैं इनपुट के ऊपर एज अ कंट्रोल सिग्नल, यू हैव टू परफॉर्म द एडिशन। ठीक है, यानी कि इस तरह की मैं अपनी लॉजिक डिजाइन करूंगा कि जब भी मेरे पास कंट्रोल सिग्नल के तीनों बिट्स जीरो हों तो वो क्या परफॉर्म करे, एडिशन परफॉर्म करे।
इसी तरह अगर मेरे पास तीनों बिट्स के अंदर 0 0 1 आ रहा हो तो वो क्या परफॉर्म कर रहा हो, वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हो। इसी तरह अगर कहता हूँ मैं 0 1 0 है तो वो क्या परफॉर्म करना चाहिए कि भाई वो एंड लॉजिकल एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। इसी तरह अगर 0 1 1 आता है तो उसको क्या परफॉर्म करना चाहिए, लॉजिकल और का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन में हम बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 1 0 0 आता है तो इट शुड डू मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू नंबर्स, राइट। या अगर 1 0 1 आता है तो इट शुड डिवाइड टू नंबर्स। ठीक है, तो डेफिनेटली जिस तरह के आप जितने मजीद ऑपरेशन अपने एलयू के अंदर आप डिजाइन करते जाएंगे, आपके जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं या कंट्रोल सिग्नल की जो बिट है वो आपकी क्या होती जाएगी, कॉम्बिनेशंस भी बढ़ते जाएंगे। और डेफिनेटली इसकी जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है वो 1 1 1 है, राइट। अगर आपकी ऑपरेशन 8 से ज्यादा है, यानी कि अगर आपको 16 ऑपरेशन करवाने हैं अपने एलयू से, तो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज द बिट ऑफ योर कंट्रोल सिग्नल, क्योंकि आप सिर्फ 3 बिट के ऊपर सिर्फ आप 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही बना सकते हैं। अगर आपको 16 ऑपरेशन करवाने हैं तो यू हैव टू इंक्रीज अ बिट ऑफ अ कंट्रोल सिग्नल, ताकि आपके पास 16 कंडीशन या 16 कॉम्बिनेशन बन पाए और आप उसके 16 ऑपरेशन के हर एक के लिए एक यूनिक आईडी। ठीक है, आप इसको ये भी हम समझ सकते हैं कि दिस इज अ यूनिक आईडी फॉर ऑपरेशन एडिशन, दिस इज अ यूनिक आईडी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसी तरह के आपके 16 यूनिक आईडीज बन जाएंगे आपके 16 यूनिक ऑपरेशन के लिए, राइट। सो दिस इज, आई गेस दिस इज द बेसिक ओवरव्यू कि आप किस तरह से एएलयू वगैरह वर्क करता है, किस तरह से डिजाइन होता है, क्या उसके ऑपरेशंस होते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर डिजाइन के बेसिकली एएलयू किस तरह से हम डिजाइन करेंगे। सो लेट्स talk with the very basic ALU design, right? So this is one of the basic ALU control या डिजाइन जो हम आज डिजाइन कर रहे होंगे ऑन द वेरीलॉग, और उसको हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको डिजाइन करते हैं। तो अगर अगर मैं पहले इसको दिखाता चलो, तो देखिए बड़ा सिंपल है कि आपके पास ए और बी इनपुट्स है, दैट इज एन नंबर बिट्स, कि आप जितने बिट्स का आप चाहे आप बना सकते हैं। तो एज आई वी स्पोक कि हम जो एलयू बना रहे होंगे वो हमारा 32 बिट्स के बना रहे होंगे, तो एन विल बी अवर 32। ठीक है, उसके अंदर उसने बोला कि एन बिट्स के इनपुट्स हैं, आपके पास एन बिट का आउटपुट है, राइट। एंड उसके बाद मजीद कुछ कॉम्बिनेशंस उसने बताए हुए हैं कि किस तरह आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। एक सिंपल एंड का ऑपरेशन है कि आपने ए और बी को सिंपली एंड कर दिया, 32 बाई 32 एंड होगा, उसका एक आंसर है। उसके बाद 32 बाई 32 को आपने और कर दिया, तो दैट इज जनरेट वन ऑफ द आंसर्स ऑपरेशन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक अजीज हार्डवेयर लगा हुआ है जो बेसिकली आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हार्डवेयर डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसको फिर हम मजीद अपनी कोडिंग के साथ साथ देखेंगे हाउ डज इट बिहेव या किस तरह इसको डिजाइन किया जाएगा। सो दिस इज द अवर गोल कि हम इस ट्यूटोरियल के अंदर आज की वीडियो में हम इस अपने एआईयू को डिजाइन कर रहे होंगे, राइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स विजुअल स्टूडियो कोड। आई होप कि आप सब इससे फेमिलियर होंगे, एंड वी नो के एज वी यूज आई के एस आई वेरीलॉग, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी इंस्टॉलेशन हुई भी होगी। सो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपके आगे आपको क्या करना होता है, यू हैव टू मेक अ फोल्डर, राइट। सो आप यकीनन अपना कोई ना कोई फोल्डर बना लें जहाँ पे भी आप चाह रहे हैं उस लोकेशन के ऊपर। सो लेट्स रिस्क 5। ठीक है, ओके, आई हैव टू ट्रस्ट माय अथॉरिटीज। ठीक है, आपने फोल्डर बना लिया, अब उसके ऊपर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सिंपल फाइल बना रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली अभी हम एएलयू डिजाइन बना रहे हैं, तो लेट्स मेक इट एएलयू डॉट वेरीलॉग फाइल। ठीक है, बेसिकली फाइल का नाम इसलिए मैं एएलयू रख रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरी इस फोल्डर के अंदर ये वाली जो पर्टिकुलर फाइल है वो किस से बिलोंग करती है, वो मेरे एएलयू से बिलोंग, एएलयू वाली फाइल से बिलोंग करती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग ऑफ द वेरीलॉग के वेरीलॉग के बेसिकली आई होप कि आपको बेसिक वेरीलॉग्स वगैरह ट्यूटोरियल्स आपको आती हो, आपको उसके सिंटेक्स आप बहुत सारा आशनास ना होंगे। यू हैव अ वेरी मच ग्रिप ऑन द वेरीलॉग कोडिंग। सो लेट्स मूव विद द सिंटेक्स क्विकली वेरी, और उसको हम एलयू के ऊपर डिजाइनिंग शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या डिजाइन करते हैं कि आप एक मॉड्यूल डिक्लेयर करते हैं कि भाई मेरा जो एलयू है वो किस मॉड्यूल का किस यकीनन उसका एक मॉड्यूल होगा, एक एक ब्लॉक के अंदर आप उसको डिजाइन करते हैं, तो आप मॉड्यूल का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके साथ आप उस मॉड्यूल को कोई ना कोई नाम प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स से वी गिव इट एन एएलयू। ठीक है, स्मॉल में यूज कर रहा हूँ क्योंकि फाइल का नाम मैं कैपिटल से यूज कर चुका हूँ। सो आई एम यूजिंग अ स्मॉल एएलयू, राइट। अच्छा, उसके बाद आप उसको बताते हैं, अच्छा, एंड मॉड्यूल, डेफिनेटली मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो उसका एक कोई ना कोई आपके पास भी एंड होगा। देन यू टेल हिम कि आपके पास एएलयू के इनपुट्स एंड आउटपुट्स के वेरिएबल्स क्या होंगे, राइट। तो अभी हमने एएलयू के डिजाइन में देखा था कि हमारे पास
दो इनपुट्स, तीन इनपुट्स है और एक हमारे पास आउटपुट्स है। इनपुट्स, टू इनपुट्स विल बी ए एंड बी, जो डेटा पॉइंट्स होंगे, एक आउटपुट आपके पास जो रिजल्ट जनरेट हो रहा होगा, और एक इनपुट जो होगा वो आपका क्या होगा, कंट्रोल सिग्नल होगा। सो मेकिंग अ वेरी सिंपल, तो हम इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए कॉमा बी आर द इनपुट्स, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैं इन्हीं सिंबल्स को या सिंटेक्स वेरिएबल्स को यूज करूंगा, तो ए एल यू कंट्रोल विल बी अवर थर्ड इनपुट, राइट। सो ए एल यू कंट्रोल एंड वन विल बी द रिजल्ट वेरिएबल। ठीक है, अब ये तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वेरिएबल्स कौन कौन से मैं इसमें यूज करूंगा, लेकिन मुझे यकीनन इसमें बताना है कि भाई ये कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो इनपुट्स के तौर पे बिहेव करेंगे और कौन से मेरे वेरिएबल्स एज अ आउटपुट के तौर पे बिहेव करेंगे। सो लेट्स डिक्लेयर अवर इनपुट फर्स्ट, ए कॉमा बी। अच्छा, नाउ आई नो कि आपको पता ही होगा कि जब सिर्फ हम इनपुट के साथ कोई वेरिएबल लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ये कितने बिट्स का वेरिएबल बनाता है, ये कितने बिट्स का वायर बनाता है, ये 1 बिट का वायर बनाता है, ठीक है। बेसिकली इसकी वजह ये है कि आप इसमें ये लिख रहे होते हैं कि 0:0। आप उसको बताते हैं कि भाई ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो कितने बिट्स के हैं, वो अभी फिलहाल 0 से 0 बिट के ही हैं, क्योंकि 1 बिट का आप डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये वाली चीज़, ये जो सिंटेक्स मैंने राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, ठीक है, वो लिखना 1 बिट के लिए यूजफुल नहीं होता, क्योंकि उसमें आप कह रहे हैं कि आप 0 से स्टार्ट करें, 0 पे ही एंड करें। सो इट्स नॉट वेरी मच यूजफुल, इसलिए हम इस सिंटेक्स को लिखते नहीं है। बट इफ वी आर डिजाइनिंग 2 बिट वेरिएबल्स, तो उसके लिए फिर हम उसको वेरिएबल्स की अपनी लेंथ बताते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड यू हैव टू एंड एट द 1, ठीक है। डिजिटल सिस्टम में आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर आप काउंट करते हैं फ्रॉम 0 to 1, सो दैट मेक्स कि आपने 2 बिट का ALU अपने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, राइट। सो इट मेक्स 0 and 1। अगर आपको 3 बिट का डिजाइन करना है तो यकीनन आप इसको 1 को क्या चेंज कर देंगे, 2 के 0, 1 and 2। सो आपके पास 3 बिट का काउंट आ रहा होगा, यानी यू आर मेकिंग दिस कंट्रोल सिग्नल या दिस वेरिएबल ऑफ 3 बिट। बेसिकली हमें कितने बिट्स का बनाना है, हमें 32 बिट्स का बनाना है, तो हम 0 से शुरू करेंगे और हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, डेट विल बी 31, ठीक है। अगर आप 0 से 31 काउंट करेंगे तो यू विल गेट द 32 बिट्स ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। ए एंड बी आर माई इनपुट्स, तो ये तो मैं डिक्लेयर कर दी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक और इनपुट है जो है ALU कंट्रोल, ठीक है। तो यकीन मैं इसको इनपुट के तौर पे डिक्लेयर करता हूँ ALU कंट्रोल। लेकिन अभी हमने देखा कि मैंने आपको बोला था कि ALU कंट्रोल जो है वो आपके पास कितने बिट्स के हैं, 3 बिट्स का अवेलेबल है, ठीक है। अगर अभी हमने इसका डायग्राम देखी थी उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास ALU जो ट्रुथ टेबल है वो 3 बिट्स का हम डिजाइन कर रहे हैं। तो 3 बिट का मुझे ALU कंट्रोल अगर मुझे डिफाइन करना है तो उसके लिए मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 0, राइट। 0 से आप स्टार्ट करेंगे और आपको एंड कहाँ पे करना होगा, इट विल बी अ 2 के 0, 1 and 2। दिस विल मेक अ ALU कंट्रोल सिग्नल ऑफ 3 बिट्स, ठीक है। इनपुट डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट विल बी अवर आउटपुट्स, राइट। सो लेट्स से आउटपुट 31, क्योंकि आउट मेरे इनपुट्स 32 बिट्स के थे तो मेरा आउटपुट भी कितने बिट्स का होगा, दैट विल बी बाय डिफॉल्ट 32 बिट्स, ठीक है। अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि अगर आप कम बिट का रखेंगे तो आपके पास डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो टू अवॉइड दैट हम उसको क्या करते हैं, हम उसको अपने उतनी बिट्स का रखते हैं जितने हमने इनपुट्स को डिफाइन किया होता है, राइट। सो दिस इज एंड फॉर द इनपुट्स एंड आउटपुट डिक्लेरेशन। लेट्स स्टार्ट विद अवर लॉजिक, ठीक है। सबसे पहले मुझे, अगर मैं लॉजिक की बात करूं, ओके, आई हैव टू क्लोज दिस, ठीक है। अगर हम लॉजिक की बात करें तो मुझे सबसे पहले लेट्स से कि हम इस सिंपल डाटा पार्ट को बना लेते हैं कि जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिंपल एंड और कर रहा है। अच्छा, ये बात आप थोड़ा इसमें देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एन बिट्स प्रोवाइडेड है, राइट, कि एन बिट के इनपुट से, तो आप देखेंगे ये हर जगह इसने एन को ही यूज किया हुआ है। यानी कि अगर ए मेरा एन बिट का है, यानी कि ए मेरा 32 बिट्स का है, तो ये जो इंटीरियम वायर्स या इंटरनल वायर्स भी आप डिक्लेयर कर रहे होंगे वो भी कितने बिट्स के होंगे, डेफिनेटली दैट विल बी ऑफ ऑल ऑफ एन बिट्स। तो अगर मुझे यहाँ पे एक वायर डिक्लेयर करना है जो मेरे ए एंड बी का आंसर स्टोर करेगा, तो डेफिनेटली दैट वायर विल बी ऑफ एन बिट्स। तो आप वायर डिक्लेयरिंग इन टेरिम वायर्स को अगर हम डिक्लेयर करें तो वो किस तरह से डिक्लेयर करते हैं हम, कि भाई हम वायर के कीवर्ड को यूज करते हैं वेरिलॉग के अंदर। डेफिनेटली देन यू हैव टू टेल हिम कि व्हाट साइज ऑफ वायर यू आर डिक्लेयरिंग। तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं 32 बिट का वायर, और उस वायर को भी हम फिलहाल नाम दे देते हैं कि भाई हम इस आंसर के अंदर ए एंड बी का रिजल्ट क्या करेंगे, स्टोर कर रहे होंगे।
इसी तरह लेट्स मेक अनदर वायर जो कि दोबारा 32 बिट्स का होगा, और इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी। यानी कि दिस वायर शोज कि मैं ए एंड बी के अंदर ए एंड बी का आंसर सेव कर रहा हूँ, और ए और बी के अंदर ए और बी को और का आंसर उसमें अंदर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने वायर 32 बिट्स के में डिफाइन कर दिया तो हमें उसके बाद क्या करनी है, हमारी लॉजिक डिजाइन करनी है कि इन वायर्स के ऊपर किस तरह के असाइनमेंट में करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर असाइन कीवर्ड के हम असाइन कीवर्ड यूज करते हैं जब भी हम वायर को डिक्लेयर करते हैं। हमारा सबसे पहला वायर क्या था, ए एंड बी। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्या असाइन कर रहे होंगे कि भाई मुझे ए और बी के दरमियान कोई ऑपरेशन करवाना है जो इस वायर के अंदर इसका आंसर जो भी होगा वो उस आंसर वायर के ऊपर जाके सेव हो जाएगा। तो दैट्स द वायर शोज कि वी आर परफॉर्मिंग एन एंड ऑपरेशन। तो डेफिनेटली इसके बीच में क्या आएगा, एक एंड ऑपरेटर आएगा, एंड वी नो कि वेरिलॉग के अंदर जो एंड ऑपरेटर वो है एंड की साइन। तो दिस विल व्हाट विल डू कि आपको ए एंड बी परफॉर्म करके देगा और उसका आंसर ए एंड बी में आपके पास सेव हो रहा होगा। राइट, सो दिस इज एंड ऑपरेशन। ठीक है, इसके इसी के साथ अगर मुझे क्या डिजाइन करना है अपना और ऑपरेशन, तो और ऑपरेशन के लिए अगेन यूज द साइन कीवर्ड, क्योंकि मैंने उसका वाया बना हुआ है। ए और बी इज इक्वल्स टू ए और ऑपरेटर एन बी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वे में भी हमने क्या डिजाइन कर दिया कि ए एंड बी एंड ए और बी। ठीक है, यहाँ तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा ये जो डेटा पार्ट है ए एंड बी और ए एंड और बी वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे इस एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो हमारा जो डेटा पार्ट है उसके ऊपर, कि वो किस तरह से आप इसको डिजाइन कर रहे होंगे। राइट, सो लेट्स से कि देखें यहाँ से अगर आप वायर्स की हम देखें कि वायर्स हाउ द वायर्स आर मूविंग, कि आपके पास एक बी का इनपुट आ रहा है जो डायरेक्ट एक तो जीरो पोर्ट पे जा रहा है, यकीनन किसी एक ब्लॉक के अंदर। ये ब्लॉक क्या है इसको मजीद देखते हैं। और उसी से एक वायर आपके पास निकलती है जो आपके पास कहाँ पे जाती है, इन द नॉट गेट। और नॉट गेट से उसका एक आउटपुट आपके पास किसी एक वायर के अंदर सेव हो रहा। तो टू डिजाइन दिस लॉजिक, यकीनन मैं एक नया वायर को अपना इनिशिएट करूंगा या उसको डिक्लेयर करूंगा। सो दैट वायर विल अगेन विल बी ऑफ 32 बिट। ठीक है, नॉट का मतलब क्या है कि आप पूरे नंबर को इन्वर्स कर रहे हैं, तो पूरा नंबर जब इन्वर्स कर रहा हूँ तो 32 बिट को इन्वर्स करूंगा तो उसका आंसर भी 32 बिट ही बनेगा। तो मुझे 32 बिट के इनपुट को अगर इन्वर्स करना है तो दैट विल बी ऑफ, तो मेरा इन्वर्स भी 32 बिट्स का ही हो रहा होगा। तो मुझे उसके लिए वायर भी कितने बिट्स का बनाना पड़ेगा, 32 बिट्स का। ठीक है, इस वायर को हम नाम दे देते हैं नॉट ऑफ बी का, कि भाई इसके अंदर जो वैल्यू सेव हो रही होगी वो बी का इनवर्स सेव हो रहा होगा। राइट, सो अगेन लॉजिक के ऊपर अगर हम आए तो लॉजिक के ऊपर मुझे अब क्या करना है कि नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, नॉट ऑपरेशन ऑन बी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, असाइन कीवर्ड एंड नॉट ऑफ बी का एक ही ना मैं बॉक्स यूज करता हूँ कि भाई असाइन नॉट ऑफ बी का वायर है। उसके ऊपर मुझे क्या करना है, बी को इन्वर्स करना है। तो बी को जब नॉट करना है या इन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास वेरिलॉग के अंदर सिंपल एक सिंटेक्स है कि यू यूज द नॉट सिंबल वेव सिंगल स्मॉल एंड देन यू हैव मेंशन द वेरिएबल जिसको आपको क्या करना है, पूरा इन्वर्ट करना है। तो मुझे बी को नॉट करना है तो मैंने यहाँ पे बी के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो बी का इनपुट है यू हैव टू इन्वर्ट दैट। अगर मुझे ए को इन्वर्ट करना होता तो मैं ए को इन्वर्ट कर देता। ठीक है, सो एंड अगर मजीद कोई लॉजिक कोई दूसरी होती कि मुझे ए एंड बी को इन्वर्ट करना होता तो मैं ए एंड बी करके उसको पूरा इन्वर्ट कर रहा होता। ठीक है, तो नाउ वी हैव इन्वर्ट अवर ए नॉट बी ऑल्सो। सो अब हमारे पास रहता है क्या कि हमें ये ब्लॉक डिजाइन करना है। फर्स्ट वी हैव टू सी कि ये ब्लॉक है क्या। ठीक है, अगर इस ब्लॉक की अगर हम थोड़ी बात करें तो दैट ब्लॉक इज बिलोंग टू, वो जो ब्लॉक है वो बेसिकली आपके पास अगर इस तरह का जो ब्लॉक बना हुआ है अगर इसके हम डिजाइन देखें। ठीक है, दिस ब्लॉक रिलेट्स टू द, दिस इज बेसिकली अ 2 by 1 मक्स। राइट, अगर मक्स की बात करें तो इसके पास दो इनपुट है ए बी, एक आउटपुट होगा वाई और एक इसकी होगी कंट्रोल पिन जो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मक्स बेसिकली इज अ डाटा सेलेक्टर, कि वो आपको डाटा सेलेक्ट करके बताता है। अगर हम मक्स का एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो मक्स का आपके पास जो ट्रूथ टेबल बनता है वो इस तरह से बनता है। right, you have an S and you have a Y. If S is zero so you can have an output A। ठीक है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एस जीरो है तो जो भी मेरा ए का इनपुट था या ए का जो डाटा था वो किस पे आ जाए, वाई पे आ जाए। एंड अगर मेरा एस वन है तो मेरे पास वाई के ऊपर किसका डाटा आ जाए, बी का। तो इफ माई वाई इज वन
तो मेरे बी के ऊपर जो भी डाटा है वो क्या हो जाए, वो वाई के ऊपर मूव ऑन हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, 2x1 मक्स का आपके पास डिजाइन है। तो अगर हम इस ब्लॉक को डायग्राम में अंदर देखते हैं तो दिस शोज के, जो मैं आपके पास थोड़ा, ओके, सो दिस शो दिस इज अ 2x1 मक्स। ठीक है, इसके अंदर आउटपुट एक पोर्ट है, लेकिन जो हमने वाई यहाँ पे डिक्लेयर की थी, जैसे हमने डायग्राम में भी देखी, एक इनपुट हमारे पास डायरेक्ट बी आ रहा है और एक इनपुट जो है हमारे पास क्या आ रहा है, नॉट ऑफ बी, जो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और उसका जो कंट्रोल सिग्नल है वो क्या है, एएलयू का कंट्रोल सिग्नल है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि एएलयू कंट्रोल तो अभी हमने 3 बिट का डिक्लेयर किया था, तो क्या इस मक्स के ऊपर वो हम तीनों, ऑल 3 बिट्स विल बी एक्टिंग टू कंट्रोल दिस मक्स, या उसमें से हम किसी एक पर्टिकुलर बिट को हम यूज कर रहे होंगे। ठीक, तो अगर इसकी अगर हम थोड़ी थ्योरी कह लें या थोड़ा आइडिया लें ऑन द बैक एंड, तो अगर हम लेट्स से कि वी हैव एन एरे। ठीक है, अगर हम एरे की थोड़ी बात करें तो एरे के अंदर बेसिकली होता है क्या, एरे इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेम टाइप, राइट। तो उसके अंदर हर एक एलिमेंट को आप स्टोर करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए आप उसकी एक पोजीशंस बनाते हैं, जिसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं, कि भाई अगर ये लोकेशन है तो दिस इज अ 0 इंडेक्स, दिस इज अ 1 इंडेक्स, दिस इज अ सेकेंड इंडेक्स, दिस इज एन थर्ड इंडेक्स, राइट। तो इसमें कोई ना कोई आंसर, यानी कि A B C D, कोई ना कोई आपका डेटा सेव हो सकता है। अगर मुझे इस एरे में से सिर्फ पर्टिकुलर इस बी के डाटा को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो आप उसको एक्सेस किस तरह से करते हैं कि आप एरे को यकीनन कोई वेरिएबल में सेव, एक एरे का कोई ना कोई वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, हम इसको लेट्स से स्मॉल ए ले लेते हैं, राइट। तो मैं कहूँगा कि भाई ए वेरिएबल जो एरे का नाम है, और उसमें से मैं उसको क्या प्रोवाइड करूंगा, उसका इंडेक्स नंबर, कि भाई मुझे उस एरे के किस इंडेक्स का डाटा मुझे आउटपुट पे चाहिए, या मुझे इसके काम, इसको कहीं पे यूटिलाइज मुझे करना है। तो आप क्या लिखते हैं कि भाई A ब्रैकेट 1। ठीक है, तो ये मुझे किसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ये मुझे बी की वैल्यू, जो इस इंडेक्स के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है जो कि बी है, वो मुझे बी की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज शोज कि मैं उस एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं या पर्टिकुलर डाटा को क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मुझे डी को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई A ब्रैकेट 3, यानी कि मैं एक के पर्टिकुलर एरे के थर्ड एलिमेंट को या थर्ड इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा हुआ है जो कि डी है, मैं उसको एक्सेस यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये सेम सिनेरियो हम यूज करते हैं हमारे डेटा बिट्स के साथ। ठीक है, अगर आप डेटा बिट्स की बात करें, अगर हमने 3 बिट के डेटा बिट की बात की है, तो 3 बिट का जो डाटा होता है वो किस तरह स्टोर होता है, उसको अगर आप एरे के फॉर्म में देखें तो इसी तरह इसके 2 बॉक्स होंगे, राइट। इसको अगर हम मजीद थोड़ा नीचे हम कर लें ताकि हम मजीद 3 4 इसके ऑपरेशंस पे देख सकें। ठीक है, अब अगर मैं 3 बिट के नंबर्स की बात करूँ तो 3 बिट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एक तो 0 0 0, 0 0 1 0 1 0 एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अगर इस आप इस ब्लॉक ऑफ में देखें तो हर एक एलिमेंट जो है या हर एक बिट है वो उसकी एक अपनी पोजीशन है। अगर मैं 3 0 की बात करूं तो ये 3 0 की अपनी पोजीशन है। ठीक है, इसकी ये 0 पोजीशन होगी, ये 1 पोजीशन है, और ये 2 पोजीशन है। ठीक है, अगर आप बिट बढ़ाते जाएंगे तो यकीनन ये पोजीशन आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो यानी कि अगर 3 बिट 0 में लिख रहा हूँ तो उनकी यानी कि मतलब है कि भाई एक 0 0 पोजीशन पे होगा, एक 0 1 पोजीशन पे होगा, और एक 0 आपका सेकंड पोजीशन पे होगा। इसी तरह अगर मैं 0 1 0 लिखता हूँ तो मेरा एक 0 आपका 0 पोजीशन पे है, 1 आपका 1 पोजीशन पे, और 0 जो है वो आपका सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, अगर इसकी एक और एग्जांपल ले लेके मैं 1 1 0 लिखता हूँ, तो दिस शोज की जो 0 वैल्यू है वो 0 पोजीशन पे होगी, 1 वैल्यू 1 पोजीशन पे होगी, और ये वाली 1 जो है वो मेरी 2 पोजीशन पे होगी। तो अगर मुझे इन पोजीशन में से 0 पोजीशन के डाटा को एक्सेस करना है तो मैं किस तरह लिखूंगा, कि यकीनन इस वेरिएबल का कोई नाम होगा, इस वेरिएबल का भी हम स्मॉल बी के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जिस तरह आप एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करते हैं टू गेट द पर्टिकुलर डाटा, इसी तरह हम इस नंबर सिस्टम्स के अंदर पर्टिकुलर बिट को एक्सेस करते हैं टू गेट द पर्टिकुलर बिट। ठीक है, यानी कि अगर मैं B 0 लिखूंगा तो मुझे ये वो इस पोजीशन में से जो 0 है वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, या इस नंबर में से अगर 1 है तो वो मुझे यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देगा, 1 मुझे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सेकंड पोजीशन को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं B 2 लिखता हूँ, तो इस शोज कि भाई मैं अपनी सेकंड पोजीशन पे जो डाटा होगा उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, तो वो मुझे आउटपुट पे क्या देगा, 0। और अगर मैं इसका लास्ट वाला मेरा इनपुट है या कॉम्बिनेशन है तो उसमें मुझे वो क्या आंसर दे रहा होगा, 1।
सो दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर बिट फ्रॉम अ वेरी लार्ज बिट नंबर। ठीक है, 3 बिट का नंबर था, लेकिन उसमें से मैं कितने बिट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एक बिट को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे एरे के अंदर डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि यहाँ पे हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और बिट्स नंबर सिस्टम में या डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, सर्किट्स के अंदर हम यहाँ पे बिट एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि वो कितने नंबर के हम बिट्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बात की हमने सिंगल बिट की। ठीक है, पहले इसको डिजाइन करते हैं, देन फिर विल मूव ऑन टू फॉरवर्ड। ठीक है, उसको अब डिजाइन कैसे करेंगे? मक्स को डिजाइन करने के लिए वी विल इंट्रोड्यूस वेरिलॉग के अंदर, यकीनन आपने पढ़ा होगा कि देयर इज अ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो मक्स बना रहा हूँ तो मक्स का यकीनन कोई ना कोई एक वायर होगा, तो लेट्स फर्स्ट डिक्लेयर अ वायर ऑफ 31:0। ठीक है, बेसिकली ये वायर क्या करेगा, इस वायर को मुझे इस तरह का नाम देना है कि मुझे बता दे कि भाई ये बी को सेलेक्ट करेगा या तो नॉट ऑफ बी को सेलेक्ट कर रहा होगा। सो वी कैन से इट द ए एल यू मक्स, राइट। कि मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए एल यू सोर्स मक्स का, कि भाई जो ए एल यू की वैल्यूज जा रही हो, या फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट्स से इट मक्स 1, राइट। अभी मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, तो वी कैन नेम इट एज अ मक्स 1, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि भाई असाइन मक्स 1। इस मक्स 1 के ऊपर मुझे क्या करना है, कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है कि आप सबसे पहले उसकी कंडीशन बताते हैं, देन यू हैव अ क्वेश्चन मार्क्स इन टेक्स्ट। उसके बाद आप उसकी फर्स्ट वैल्यू जो भी आप उसमें असाइन करना चाहते हैं या ट्रू वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो, देन कॉलन, एंड देन वी हैव अ सेकेंड वैल्यू, राइट। दिस इज द सिंटेक्स। तो अभी हम इस सेकंड वैल्यू और उसको हटा देते हैं कि भाई हमारी वो वैल्यूज क्या होंगी। हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमें अपने कंट्रोल सिग्नल के जीरो बिट को चेक करना है। अगर आप इस डायग्राम पे हम दोबारा आए तो जीरो पे देखें, तो इस कंट्रोल एएलयू की जो जीरो बिट है, अगर आप सबस्क्रिप्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, जीरो। यानी कि यहाँ पे जो कंट्रोल बिट है या कंट्रोल सिग्नल है वो किस बिट पे लगा हुआ है, एएलयू कंट्रोल की जीरो बिट के ऊपर। तो वो आप किस तरह से हम लिखेंगे कि हमें एएलयू कंट्रोल हमारा सिग्नल है, तो डेफिनेटली एएलयू कंट्रोल आप लिखेंगे। उसके बाद आप उसकी कौन सी बिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्सट्रैक्टिंग इज जीरो बिट। ठीक है, तो जीरो बिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, यकीनन जीरो बिट आपकी जीरो पोजीशन पे ही अवेलेबल होती है, तो यू एक्सट्रैक्ट द जीरो बिट। उसके ऊपर आप कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अभी हमने 3 बिट में से क्या किया है, एक बिट को एक्सट्रैक्ट किया है, तो वी हैव अ सिंगल बिट। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो किसके हिसाब से लगेगी, 1 बिट के हिसाब से लगेगी। तो इट विल बी यू आर चेकिंग कि भाई क्या ये 1 बिट बाइनरी जीरो के बराबर है या नहीं है। अगर ये मेरा आंसर जो है, या जो कंट्रोल एएलयू का जो सिग्नल है, अगर वो 1 बिट बाइनरी जीरो के बराबर है, तो वो किसको आउटपुट पे दे देगा कि ये जो बी की जो बी इनपुट आ रहा है वो उसको सेलेक्ट करके आउटपुट पोर्ट के ऊपर मुझे प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है कि भाई अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो आई व्हाट आई वांट आउटपुट इज बी, कि बी की जो वैल्यू है वो मेरे मक्स 1 के ऊपर अटैच हो जाए। अगर नहीं, अगर मेरी कंट्रोल की यूनिट वैल्यू जीरो है या जीरो नहीं है और 1 है, तो यहाँ पे वो क्या असाइन हो जाए, नॉट ऑफ बी। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ मक्स सेलेक्शन, कि आप उसको क्या करें, टर्नरी ऑपरेटर से सेलेक्ट करें कि एएलयू कंट्रोल इज जीरो, सो यू हैव टू सेलेक्ट बी, और यू हैव टू सेलेक्ट नॉट ऑफ बी अगर एएलयू कंट्रोल की बिट जीरो आपके पास जीरो अवेलेबल नहीं है, राइट। सो लेट्स मूव टू अ डायग्राम अगेन, कि हमने यहाँ से डायग्राम शुरू की वी इनपुट्स के साथ, हमने उसको नोट किया, वी हैव डन दैट। हमने उसके ऊपर एक टर्नरी ऑपरेटर मक्स सेलेक्टर लगाया था, वो भी हम यहाँ पे डिजाइन कर चुके। अब हमें क्या करना है कि हमें इस मक्स सम के ब्लॉक को डिजाइन करना है, कि हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस सम ऑफ ब्लॉक। तो सम के अगर आप इनपुट देखें तो एक इनपुट तो आपके पास ए आ रहा है, तो यकीनन ए विल बी वन ऑफ द इनपुट्स। सेकेंड इनपुट जो है वो आपका कहाँ से आ रहा है, मक्स का आउटपुट, जो अभी हमने मक्स डिजाइन किया है तो उसका आउटपुट होगा। तो ये सिंपल, अगर मैं इसको सिंपलिसिटी में अगर लिखना चाहूँ, तो फर्स्ट लेट्स डिजाइन अ वायर ऑफ 32 बिट्स सम। ठीक है, इसके अगर मैं बोलूँ कि भाई हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन डिजाइन कर रहे हैं, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे ऑपरेशन को डिजाइन कर रहे हैं। असाइन सम विल बी, एक ऑपरेटर मैंने बोला कि ए होगा, तो सिंपल में ए प्लस, और दूसरा हमने देखा कि दूसरा इनपुट मेरा क्या है, जो कि मैंने मक्स 1 यहाँ पे डिसाइड किया है कि भाई या तो वो बी आउटपुट देगा या तो नॉट ऑफ बी, राइट। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, राइट। ए प्लस मक्स ऑफ 1, जो भी मैंने वाई यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। सो
ये सिंपल एक एडिशन हो सकती है कि भाई मैं ए और बी को सिर्फ क्या कर रहा हूँ, या ए और बी का जो दूसरा सेलेक्टर पिन से जो मुझे आंसर आ रहा था उनको मैं आपस में क्या करवा रहा हूँ, एडिशन करवा रहा हूँ। लेकिन अब बात आती है कि ठीक है ये तो एडिशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो अगर हम थोड़ा दोबारा अपनी लॉजिक थ्योरी पे जाएं कि लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली करता क्या था कि सबसे पहले आप कोई भी नंबर लेते हैं ए, आप उसको क्या कर देते हैं, इन्वर्ट, राइट। जब आप इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट मीन्स यू आर टेकिंग इज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। जब आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो उसको आपको टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप उस इन्वर्ट के अंदर क्या कर देते थे, +1 कर देते थे। तो दैट बिकम्स अवर टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये चीज होती थी। तो टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब बेसिकली लेने की वजह क्या होती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ए को -b बना रहा हूँ, सॉरी, ए को -a बना रहा हूँ, या -a को मैं +a बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम चेंजिंग द साइन ऑफ माई नंबर, आइदर आई एम मेकिंग a फ्रॉम -a और -a टू a। दिस इज द रीजन ऑफ द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते थे। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हम ऑपरेशन, अगर सिंपल एडिशन की बात करें, तो एडिशन का क्या मतलब होता है कि वी आर टेकिंग a+b, राइट। और सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि भाई सब्ट्रैक्शन के लिए व्हाट कैन आई डू, a-b, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन व्हाट मैं आपको ये बोलूं कि आई वांट दिस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन दिस वे, कि यानी कि आप ए और बी को आपस में प्लस ही करें, लेकिन कुछ इस तरह से प्लस करें कि आपके पास जो ऑपरेशन हो रहा हो वो सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। तो दिस रेजेज एन क्वेश्चन कि हाउ इज दैट पॉसिबल, कि मैं ए और बी को तो प्लस करवा सकता हूँ, सिंपल है, लेकिन मैं ए और बी के अंदर बीच में प्लस साइन को यूज करते हुए सब्ट्रैक्ट कैसे करवा सकता हूँ। तो दैट आंसर गिव अस आंसर, दैट क्वेश्चन वाज आंसर बाय आवर टूज कॉम्प्लीमेंट टेक्निक, कि व्हाट इफ मैं ए को अगर -a कर दूं, या बी को मैं -b कर दूं। तो अगर a+b सिंपल है तो मैं a+-b करूं, ठीक है। तो इसमें देखें ऑपरेटर मेरा चेंज नहीं हुआ, ऑपरेटर रिमेन द सेम। मैंने सिर्फ क्या किया है कि मैं अपने b की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया है -b के अंदर। तो डेफिनेटली जब आप एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर विल बी सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव होगा, माइनस होगा। इसी तरह आप जब ये बेसिक अलजेब्रा के रूल्स है कि जब आप दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर एडिशन हो रही होगी, कि बोथ विल बी पॉजिटिव तो प्लस हो रहा होगा। अगर एक भी आंसर आपके पास इनपुट नेगेटिव है तो आपके पास क्या परफॉर्म हो रही होगी, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही होगी। या आइदर बोथ इनपुट्स आर नेगेटिव तो आपके पास उसमें भी क्या परफॉर्म हो रहा होगा, एडिशन परफॉर्म हो रहा होगा। सो देयर दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा एंड टूज कॉम्प्लीमेंट जो हम अपने हार्डवेयर डिजाइनिंग में यूज करते हैं अपने हार्डवेयर को सिंपल बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने उसी एडर को ही यूज करते हुए हमने सिर्फ क्या किया है कि हमने बी की पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर दी, या तो नेगेटिव साइन को हमने पॉजिटिव कर दिया। तो अगर आप दोबारा इस डिजाइन के ऊपर आए हम, तो इस डिजाइन में अगर आप ये देखेंगे कि हमने जो ये नॉट ऑफ बी किया था उसका रीजन ही ये था कि हम अपने बी को इन्वर्स कर रहे थे, ठीक है, इन्वर्ट किया। तो उससे हमने क्या परफॉर्म कर लिया, अगर आप देखें तो उससे हमने अपने बी के ऊपर 1 कॉम्प्लीमेंट्स परफॉर्म कर लिया, कि मैंने भाई ए को या बी को इन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा बी इन्वर्ट हो चुका, हाफ ऑफ द डिजाइन। लेकिन अब उसको प्योरली नेगेटिव बनाने के लिए मुझे उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना लाजमी है, राइट। अभी तक वो मैंने चीज नहीं ली थी, टूज कॉम्प्लीमेंट को मैंने अभी तक नहीं लिया था। मैंने सिर्फ अभी इन्वर्ट करके इसके 1 कॉम्प्लीमेंट को अचीव किया है। आई हैव टू टेक टूज कॉम्प्लीमेंट एज वन। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या कहता है कि भाई यू हैव टू ऐड +1 इन इट, ठीक है। तो अगर मैं +1 ऐड करता हूं तो मेरा जो इन्वर्ट ऑफ बी है वो पूरा प्योरली नेगेटिव ऑफ बी बन जाएगा। और नेगेटिव ऑफ बी जब ए के साथ प्लस होगा तो एग्जैक्टली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, वो क्या होगा, a-b। तो अगर आप डिजाइन में हम दोबारा आए तो यू कैन सी कि डिजाइन में एएलयू कंट्रोल की 0 बिट जो आपके इस मक्स को भी कंट्रोल कर रही थी, वही सेम बिट आपके एडर के अंदर भी इनपुट के तौर पे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली दिस शोज कि अगर आपके पास एएलयू की बिट 0 होगी तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे होंगे, अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ओके, नाउ वी गॉट द आइडिया कि भाई ठीक है मुझे इसमें +1 भी करवाना है। तो ये जो +1 जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ कंट्रोल सिग्नल, राइट। सॉरी फॉर द राइटिंग, बेसिकली इसी तरह
होता है। ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखे तो अब सम की मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि भाई ए प्लस, ठीक है, बी प्लस दिस कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, इस कंट्रोल सिग्नल का की जीरो बिट। ठीक है, अगर सपोज करें कि कंट्रोल सिग्नल अगर ये जीरो होगी, अगर ये वाली जो मेरी पूरी वैल्यू है इफ इट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा होगा, सिंपल ए प्लस बी। ठीक है, आंसर विल बी ए प्लस बी प्लस जीरो, तो ए प्लस बी प्लस जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी। वॉट इफ कि मेरी ये जो वैल्यू है वो हो जाए वन। ठीक है, अगर ये वैल्यू मेरी वन हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम व्हाट आई एम, मुझे क्या आउटपुट पे इस सम के दूसरे इनपुट पे क्या आ रहा होगा, वो बी नहीं आ रहा होगा, मेरे पास क्या आ रहा होगा, नॉट ऑफ बी आ रहा होगा। तो यहाँ पे फिर मेरे ऑपरेशन किस तरह से हो जाएगा कि आई विल बी डूइंग ए प्लस नॉट ऑफ बी प्लस वन, क्योंकि मेरी ये वैल्यू वन थी। ठीक है, अभी हमने देखा था कि इस इक्वल्स टू जीरो तो ए प्लस बी हो रहा होगा, लेकिन जब वन हो जाएगा तो ये मुझे बी आउटपुट नहीं देगा, ये मुझे क्या देगा, नॉट ऑफ बी आउटपुट देगा। ठीक है, अगर आप इस चीज को अगर हम थोड़ा गौर करें कि नॉट ऑफ बी प्लस वन इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग टूज कॉम्प्लीमेंट, कि भाई आपने सबसे पहले बी को इन्वर्ट किया, राइट, एंड यू देन ऐड वन इनटू बीस दैट इन्वर्ट नंबर, सो इट विल गिव यू अ टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर जनरेट होगा इस ऑपरेशन की वजह से, दैट विल बी आंसर ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, कर मैं प्लस ही रहा हूं, लेकिन सिर्फ मेरी एक मुझे पीछे मक्स लगाने की वजह से एक कंडीशन इस पर्टिकुलर इस एक वैल्यू को ऐड करने की वजह से जो कंट्रोल सिग्नल की जीरो बिट है, उससे मैं एक ही ऑपरेशन से, एक ही साइन से मैं अपने दो ऑपरेशन अचीव कर पा रहा हूँ। एक तो ए प्लस बी जबकि कंट्रोल सिग्नल जीरो है, और ए माइनस बी जब मेरा कंट्रोल सिग्नल किसके बराबर है, वन के बराबर है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या सेव करेंगे कि सम विल बी इक्वल्स टू मक्स। एक मजीद चीज अब जो अभी ऐड करनी है वो कि हमें एएलयू कंट्रोल की जीरो बिट को ऐड करना है, राइट। तो ये वाली बात अभी हम पीछे देख चुके हैं कि सम विल बी ए प्लस मक्स वन, जो मेरे पास यहाँ से एक सेलेक्ट होके आ रहा होगा कि इसी बिट के ऊपर अगर जीरो है तो बी आएगा, नहीं तो मेरे पास नॉट ऑफ बी आउटपुट पे आ रहा होगा। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम या तो जीरो ऐड करेंगे तो ए प्लस बी होगा, अगर वन ऐड करेंगे तो दैट विल बी द टूज कॉम्प्लीमेंट, और मुझे जो आंसर मिलेगा वो ए माइनस बी का आंसर मिल रहा होगा, राइट। सो दिस इज वॉट हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस डिजाइन ऑफ ए प्लस एंड सब्ट्रैक्शन बी। ठीक है, अभी हमें क्या लास्ट डिजाइन करना है, लास्ट कि हमें इस लास्ट एक मक्स को डिजाइन करना है। ठीक है, ये भी बेसिकली देखा जाए तो इस इज अ मक्स, बट दिस इज अ 4x1 मक्स। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से डिजाइन करेंगे कि डेफिनेटली अगेन वी विल मेक अ वायर ऑफ 32 बिट्स। ठीक है, इसको हम मक्स का टू का नाम दे देते हैं कि लेट्स से दिस इज अ मक्स टू। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डिजाइनिंग 4x1 मक्स, राइट। तो असाइन, यकीन मैंने जो मक्स का अपना नाम रखा है मक्स टू के ऊपर असाइन करूंगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम दोबारा डिजाइन पर आके देखें तो यहाँ पे मेरी जो एएलयू कंट्रोल की बिट्स यूज हुई है वो दो बिट्स यूज हुई। ठीक है, यहाँ इस मक्स को जब हमने डिजाइन किया था अपर मक्स को, तो हमने एक बिट को यूज किया था, बट नाउ वी विल बी यूजिंग टू बिट्स। ठीक है, तो टू बिट्स यूज करने के लिए डेफिनेटली ये मैं एलएसबीस की बात कर रहा हूँ, तो टू बिट्स को मैं किस तरह से यूज करूंगा कि कंडीशन एएलयू कंट्रोल वन कॉलन जीरो। ठीक है, वन कॉलन को आप यूज करेंगे कि मैं जीरो और वन दो बिट्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, उसकी अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि भाई अगर ये टू बिट बाइनरी जीरो जीरो के बराबर है तो आप मुझे जो सम है, क्योंकि अगर आप इस डिजाइन को देखें कि जब ये दो बिट जीरो के बराबर है तो इसमें जो सम का आउटपुट है वो ही जा रहा है। ठीक है, जीरो जीरो या जीरो वन दोनों कंडीशंस पे ये मुझे किसको एक्सेस कर रहा है, सम को ही मुझे आउटपुट पोर्ट पे प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसकी कंडीशन में इस तरह लिख सकता हूँ कि भाई एएलयू कंट्रोल वन बिट जीरो अगर बराबर है दो बिट जीरो के तो आउटपुट में मुझे क्या प्रोवाइड कर दे, सम। नहीं तो अगेन कंडीशन चेक हो कि क्या एएलयू कंट्रोल बराबर की दो बिट बराबर है टू बिट बाइनरी जीरो वन के, अगर है तो मुझे क्या आउटपुट पे प्रोवाइड कर दे, अगेन मुझे वो सम प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो वी हैव डिजाइन दीज टू। अब थर्ड ऑपरेशन क्या है कि अगर मेरे पास दो बिट्स जो है वो वन जीरो के बराबर है तो वो मुझे एंड का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा हो। तो इन दिस डायग्राम वी कैन सी कि हमने एंड का जो रिजल्ट है वो हमारे ए एंड बी के वायर में सेव किया था। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन किस तरह से बनेगी कि ए एल यू कंट्रोल वन कॉलन जीरो
विल बी डबल इक्वल्स टू 2 बिट बाइनरी 10। ठीक है, तो इसमें ये मुझे क्या प्रोवाइड करे, ए एंड बी का जो भी रिजल्ट मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया वो मुझे वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, इसको हम थोड़ा रीडेबल फॉर्म में ले आते हैं क्योंकि आई गेस वो बहुत ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट विल बी अवर थर्ड कंडीशन, कि थर्ड कंडीशन क्या होगी कि भाई अगर ए एल यू कंट्रोल 0 0 के बराबर है या 0 1 के बराबर है तो हमने बोला कि ओके यू हैव टू प्रोवाइड मी द सम। अगर 1 0 के बराबर है तो यू हैव टू प्रोवाइड मी द एंड गेट ऑपरेशन। लास्ट इज 1 1, तो उसमें मुझे क्या प्रोवाइड करना है, और अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे दोबारा यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मैं ए एल यू कंट्रोल सिग्नल को चेक कर रहा हूँ कि आइदर दिस इक्वल टू 1 1। तो माय आंसर इज नो, क्योंकि हमें पता है कि पॉसिबल दो बिट्स के जो कॉम्बिनेशन है वो चार ही हो रहे हैं, आइदर 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसके अलावा यहाँ पे कोई और नंबर आ नहीं सकता। तो जब नंबर ही नहीं आ सकता तो उसके लिए मजीद मुझे कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपल इसको ये देख सकता हूँ कि इट इज लाइक इफ एल्स इफ एंड लास्ट विल बी द एल्स। तो अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आई नो कि भाई मेरे पास जो इनपुट आ रहा होगा वो क्या होगा, 1 1 ही आ रहा होगा। तो लेट्स प्रोवाइडेड ए और बी, जो मैंने ए और बी के अंदर अपने ऑपरेशन को सेव किया हुआ है, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन अवर मक्स नंबर 2, कि हमने 2 by 1 मक्स को डिजाइन किया हुआ है। और लास्ट हमें क्या करना है, अपने जो भी मक्स का आउटपुट है वो हमें अपने रिजल्ट पोर्ट के ऊपर अटैच करना है या उसको मैप करना है। सो लास्ट लाइन विल बी अवर, we will be assigning result equals to mux2, right? So this is how we can design our ALU, वेरी बेसिक एएलयू के, जिसके अंदर सिर्फ आपके पास एंड ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन हो रहा है, नॉट वन ऑफ द इंटरिम ऑपरेशन जो आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ज़रूरी है करना, तो इसलिए हम उसको ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल सिग्नल एंड द डाटा पार्ट वी हैव डिजाइन। और उसके बाद लास्ट हम किसी चारों ऑपरेशन में से किसी एक ऑपरेशन को सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल, कि हम अभी एट अ टाइम उससे क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे थे अपने एएलयू से। either we want to perform addition, subtraction and और लॉजिकल और उसको हम सेलेक्ट करके हम अपने रिजल्ट के ऊपर मैप करते हैं। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन अवर बेसिक एएलयू। सो आई गेस कि हमारी डिजाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। द टेस्ट बेंच डिजाइन करना डेफिनेटली दैट इज आई विल से कि वो आप खुद डिजाइन करें अपने बेसिस के ऊपर, खुद इसको टेस्ट बेंच को डिजाइन करके उसको टेस्ट करें कि हमने जो अपना एएलयू को डिजाइन किया हुआ है, जिस तरह हमने इसको डिजाइन किया, आइदर इज वर्किंग परफेक्टली फाइन और नॉट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी एएलयू को मजीद थोड़ा ऑप्टिमाइज करके एडवांस में बनाएंगे कि किस तरह से एडवांसमेंट उसकी होगी। सो वी विल सी इन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।